Hi kids, I'm just going to teach more about brain. As you know that I have finished the midbrain and hindbrain. So you know about brain have three part. Brain के पास कितने part होते हैं बेटा? Brain have total three part. First part is forebrain. Second part is a midbrain, and third part is a hindbrain. Okay, you know very well about hindbrain have pons, medulla oblongata and cerebellum. You know very well about pons and medulla oblongata. I will teach more about cerebellum, and you already know about midbrain. In midbrain you already have seen the superior calculi and inferior calculi. Okay, so today we will see the forebrain. Forebrain have three part, as earlier I have taught you. First, the cerebrum. Cerebrum is the largest part of brain. ये क्या है बेटा? ये brain का largest part है. After this, brain have forebrain have olfactory lobe. Forebrain have olfactory lobe. And diencephalon. A study you have seen about the diencephalon, you have seen here whenever you will go from the medulla oblongata to the pons, midbrain. Here you will find the third ventricle, and here is a pineal gland. Here was the thalamus. Here was the hypothalamus, और it was the diencephalon. ये पूरा क्या था बेटा? Diencephalon means diencephalon consist of hypothalamus, thalamus, and pineal gland, that is also known as epithalamus. Okay, a study you have seen. After that, we will discuss about olfactory lobe. You can see here just above the nose. नोज के यहाँ से देखोगे हमारा फ्रंटल लोब जो है यहाँ आगे के साइड में, इसके जस्ट नीचे here you can see somewhere here you can see clearly there is a yellow color structure. Here you can see that is our olfactory lobe, or it is also called as the olfactory bulb. It is the second part of forebrain below the frontal lobe. हमारा यहाँ पे हम आपने क्या पढ़ा हुआ है? फ्रंटल बोन पढ़ा हुआ है, ठीक है? फ्रंटल बोन के नीचे ही हमारा क्या है? फ्रंटल लोब है, और फ्रंटल लोब के जस्ट नीचे ऑल्फैक्टरी लोब है. आपका ऐसे क्या होता है बेटा? ऐसे नोज है, नोज से यहाँ पे एक नर्व जा रही है बाईपोलर. आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में पढ़ा है, न्यूरॉन जरा बाईपोलर न्यूरॉन. दिस बाईपोलर न्यूरॉन डायरेक्टली गोज इनटू द ऑल्फैक्टरी लोब. ये कहाँ पे जाएगा? ऑल्फैक्टरी लोब. किस लिए बेटा? फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल, स्मेल के सेंस के लिए, ऑल्फैक्शन के लिए. यू कैन सी हियर ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी बल्ब इज अ स्पून लाइक. ये एक स्पून की तरह स्ट्रक्चर है. यहाँ से बाईपोलर नर्व निकलेगी और डायरेक्टली कहाँ पे जाएगी बेटा? यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब में. यहाँ से जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, दिस इज नोन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल, जिससे आपको कोई मतलब नहीं. आप एक साइड व्यू देख रहे हो. जब भी आप इसको 20 से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ टू ऑल्फैक्टरी लोब. मतलब जो हमें इधर से एक दिख रहा है, ये इधर भी प्रेजेंट है. इधर भी फ्रंटल बोन्स फ्रंटल लोब के नीचे, और इधर भी फ्रंटल लोब के नीचे हियर. तो हियर इज अ टू ऑल्फैक्टरी लोब और टू ऑल्फैक्टरी bulb. It was the second part of brain. Now we will see the next part of brain, that is the next part of forebrain, that is the your cerebrum. It is the largest part of brain. ये brain का largest part है. Okay. Now we will see somewhat like this. This is our
Not good. Wait a second, beta. You can see somewhere here is your cerebrum. What is it? This is the cerebrum. It is the largest part of brain. Hold this. Hold this. ये पूरा हमारा क्या है? Cerebrum है. You can see here your cerebrum is divided into some part like this. Here, here, here. You can see here is a total 4 part. One you can see by the sky blue color. One is the light yellow, light green, and light pink. You can see here total four part. Actually, line that divide brain cerebrum inside from the inside into the different lobe. I'm not talking about the into the different hemisphere. You know that if it is 4 lobe, तो दूसरे side में भी 4 lobe है. Total 8 lobe है. एक हेमिस्फेयर ये है जिसको हम देख रहे हैं, दूसरा हेमिस्फेयर ये दोनों ऊपर से जो अलग अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो हमने देखा है, ये अंदर से जुड़े होते हैं कॉर्पस कॉल्सम के थ्रू, ठीक है, ऊपर से ये डिवाइड होते हैं. लेकिन हमारा ये जो एक हेमिस्फेयर है, उसी तरह से हमारा दूसरा हेमिस्फेयर भी है. ये एक हेमिस्फेयर 4 लोब में डिवाइड है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, बस एक लाइन बनी हुई है, जैसे एक घर में पार्टीशन बनते हैं उसी तरह से पार्टीशंस बने हुए हैं. एक्चुअली में जो लाइन ये लोब बनाती है, दिस लाइन इज नोन एज सल्कस. इस लाइन को दिस लाइन, दिस लाइन, this line, this all divide lines is known as sulcus. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? sulcus. क्लियर? ठीक है. अब देखो इतना समझ में आया कि जो लोब के अंदर लाइन डिवाइड करती है उसे हम सल्कस बोलते हैं. नाउ यू कैन सी दैट इन योर सेरिब्रम हियर इज अ three main regions या area in your brain. Every lobe have some sensory area. आपके जितने भी लोब्स हैं सब में कुछ ऐसे एरिया हैं जो क्या है बेटा? दैट इज द कुछ ऐसे एरिया हैं. ऑल दीज एरिया, ये पूरे एरिया, ऑल दीज एरिया सेंसरी एरिया. हियर, समवेयर हियर, somewhere here and somewhere here. ठीक है. एंड बिहाइंड दिस, इसी सेंसरी एरिया के पास में यू कैन सी दैट एवरी लोब हैव एसोसिएशन एरिया. जितने भी लोब हैं सबके पास क्या है बेटा? एसोसिएशन एरिया. ओह, इट विल बी डिसअपीयर. ये डिसअपीयर हो जाएगी. वेट अ सेकेंड बेटा, मैं फिर से इसको ड्रॉ करती हूँ. You can see here is the somewhere here is a sensory area in the frontal lobe. This lobe, इस लोब में भी, इस लोब में भी, इस लोब में भी और इस लोब में भी. सारे लोब के पास क्या है बेटा? कुछ सेंसरी एरिया है. आफ्टर दैट यू विल सी कि just behind the sensory area here is a some more area that is known as association area. Means your one hemisphere is divided into 4 lobe. आपका एक हेमिस्फीयर कितने लोब में डिवाइडेड है बेटा? 4 लोब में डिवाइडेड है, जिसके नेम कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट इज नोन एज फ्रंटल लोब. फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब, ठीक है. इट इज द पेराइटल लोब. सेम लाइक योर बोन, जैसी आपकी बोन थी वैसी पेराइटल लोब. हियर इज योर ऑक्सीपिटल लोब, जैसे आपके बोन्स के नेम थे. इट इज योर टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब. अब आप क्या देखोगे बेटा? व्हाट यू कैन फाइंड, you can find every lobe have some area. This is a this all have the sensory area, and behind sensory area all have the association area. मतलब whatever message is coming by the sensory neuron, this message will goes into the this
दिस और दिस, जिस लोब के लिए मैसेज आ रहे होंगे थैलेमस के पास आएंगे तो थैलेमस अलग अलग लोब में भेजेगा। अभी आप ये देखोगे कि किस टाइप का मैसेज किस लोब में जाएगा, या किस टाइप के मैसेज के लिए कौन सा लोब सेलेक्टेड है। आफ्टर दैट यू विल सी हियर इज अ वन एरिया। यहाँ पे आप एक एरिया देखोगे, हियर यू विल सी वन एरिया, दैट इज अ मोटर एरिया फॉर ऑल द ब्रेन। ये जितने भी ब्रेन है, जितने भी लोब हैं सेरिब्रम के, फ्रंटल लोब का सेंसरी एरिया हो गया, पैराइटल लोब का सेंसरी एरिया हो गया, ऑक्सीपिटल लोब का सेंसरी एरिया हो गया, टेम्पोरल लोब का सेंसरी एरिया, फॉर ऑल हियर इज अ वन मोटर एरिया। मींस इफ you are touching hot plate, then this message come from somewhere here to here, पेराइटल लोब में आएगा, ठीक है, टू द सेंसरी एरिया ऑफ पेराइटल लोब। पेराइटल लोब के सेंसरी एरिया का नाम होता है, हर लोब के सेंसरी एरिया का नाम है, इट इज सोमैटो सेंसरी एरिया, सोमैटो सेंसरी एरिया। क्लियर? तो ये क्या है, सोमैटो सेंसरी एरिया। अब मैसेज जो आ रहा है बेटा, यहाँ से मैसेज गया, सपोज आई एम टचिंग द हॉट प्लेट, दिस मैसेज विल गोज टू द थैलेमस, थैलेमस के पास गया और थैलेमस कहाँ भेजेगा, इस सोमैटो सेंसरी एरिया में भेजेगा। देन दिस एसोसिएशन एरिया विल प्रोसेस अबाउट दिस की प्लेट हॉट है, हाथ को टच करना है, क्या करना है, प्लेट हॉट है, इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन को देना है। Then this will pass message to motor neuron, and then motor area, then again motor area send message by the motor neuron to our spinal cord, then our muscles. क्लियर? मतलब ऑल मैसेज जितने भी सेंसर्स होंगे, सारे सेंसर्स, वो हीट का है, टच का है, प्रेशर का है, हॉट का है, कोल्ड का है, ऑल द सेंसर्स विल गोज इनटू द सोमैटोसेंसरी एरिया। पेराइटल लोब के सोमैटोसेंसरी एरिया में जाएंगे, क्या क्या, हॉट, कोल्ड, टच, प्रेशर, all these senses are going to somatosensory area। फिर एसोसिएशन एरिया में इनकी प्रोसेसिंग होगी, मोटर एरिया के पास एसोसिएशन एरिया भेजेगा कि वो प्लेट हॉट है, वहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, वो कोल्ड है, जो भी है, देन मोटर एरिया इसके लिए रिस्पॉन्स के लिए मैसेज करेगा। क्लियर? मीन्स पेराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल for the hot, cold, touch, pressure, every general senses. Okay, after that, come on the frontal lobe. Sensory area of frontal lobe is known as prefrontal cortex. इसको क्या बोलते हैं? Prefrontal cortex. All the major thinking, जितने भी major thinking है, मेजर डिसीजंस हैं, डिसीजंस हो गए, मेजर थिंकिंग हो गई, इमेजिनेशंस हो गए, क्रिएटिविटी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, पर्सनालिटी हो गई, ऑल दीज मैसेज विल गोज हियर, यहाँ पे जाएगा। कुछ आपने देखा उसके बारे में सोचना है, आपको पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना है, नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं, ऑल द मेजर डिसीजन टेकन बाय द फ्रंटल एरिया। और इसके लिए जो मैसेजेस आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। देन एसोसिएशन एरिया विल एसोसिएट फॉर दिस, और मोटर न्यूरॉन, मोटर एरिया इसके लिए वर्क करेगा, इसके लिए वर्क करने का मैसेज भेजेगा। क्लियर? मतलब यहाँ हो गया प्री फ्रंटल में, हो गया हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में मेजर डिसीजन में, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑल दीज द मेजर थिंग्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, आवर बॉडी लाइफ इज हैपनिंग इन द फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब। ठीक है, ये हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर इट। या आफ्टर दैट यू विल सी समवेयर हियर जस्ट बिलो द मोटर एरिया, आपको पता है कि यहाँ पे हियर इज अ मोटर एरिया, ठीक है। मोटर एरिया के जस्ट नीचे बेटा, समवेयर हियर, हियर इज द वन एरिया दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्पीच। हम क्या बोल रहे हैं, आई एम सेइंग दैट stand up, sit down, बेटा प्लीज डू इट, डोंट डू इट, ऑल द मैसेजेस। या आप बोल रहे हो मैम दिस इज नॉट लाइक दिस इज लाइक दिस, all the speech processing
डन हियर। सारी स्पीच प्रोसेसिंग कहाँ होती है? यहाँ पे। दैट इज नोन एज ब्रोकस मोटर स्पीच एरिया। अजी पेन को सही चल नहीं दिया। ओके, अब देखो क्या होता है। आई एम सेइंग दैट what is the function of medulla oblongata, and your mind is understanding about that कि what should we say, क्या हमें कहना चाहिए, क्या हमें नहीं कहना चाहिए, क्या हमें इसका आंसर देना चाहिए, क्या हमें इसका आंसर पता है। फॉर ऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं बोली हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेटा, ये क्वेश्चन है, क्या है, कहाँ का है। जितनी भी दूसरी की कही हुई बातों को समझने की प्रोसेस होती है, ऑल द प्रोसेस हैपन हियर। वो प्रोसेस कहाँ पे होती है? यहाँ पे एक एरिया है हमारे पेराइटल लोब में, दैट एरिया इज, यहाँ सिर्फ ये पेराइटल लोब में नहीं है, ये पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब के थोड़ा सा सेंटर में यहाँ पे है। इसलिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? वर्निकस, वर्निकस एरिया। एक्चुअली ये क्या करता है वर्निकस एरिया? अंडरस्टैंडिंग की जितनी भी चीजें, ऑल डन हियर, हमें समझने की, सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, उसको हम किस सेंस में ले रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ऑल दीज थिंग हैपन हियर। सारी चीजें कहाँ होती हैं बेटा? यहाँ पे होती हैं। Why I'm teaching about this? Because this is the previous year question और ये दोनों हमारे नीट के एग्जाम में आ चुके हैं। आपके एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिए हैं, बट आपके नीट के एग्जाम में आ चुके हैं। आफ्टर दैट यू विल सी, यू विल कम इन ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दो एरिया है। विजुअल, एक सेंसरी एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल सेंसरी एरिया। और यहाँ पे क्या है? विजुअल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, यहाँ हमारे आईज है, आईज के पास एक नर्व डायरेक्टली हमारे पीछे जाती है, ठीक है, ऑक्सीपिटल के पास, जो हमें बताती है कि आपने यहाँ पे कुछ देखा। तो यहाँ पे एसोसिएशन एरिया उसको प्रोसेसिंग करता है। एक्चुअली में मैंने जो देखा वो उसका बड़ा सा सूंड है, बड़ी सी आंख है, ऐसा है, एक्चुअली में वो एलिफेंट है। अब उसको देख के वो इसको ये सारी चीजें बताती है, उसके लिए हमें रिस्पॉन्स कैसा करना है, ये मोटर न्यूरॉन यहाँ से सेंड करेगा। क्लियर? occipital for visual things. After that you will come on the temporal lobe में आओगे तो यहाँ आपका ईयर है। ईयर सारा मैसेज किसको देता है? यहाँ पे एक सेंसरी एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटरी सेंसरी एरिया। ऑडिटरी सेंसरी एरिया, ये इसको मैसेज देगा, यहाँ से एसोसिएट होगा, फिर ये इसको भेजेगा, मोटर न्यूरॉन यहाँ से इसके लिए वर्क करेगा। क्लियर? मतलब हर लोब में जो सेंसस के एरिया है वो वर्क करेंगे। फ्रंटल लोब फॉर द हाई इमेजिनेशन, मेजर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, फॉर ऑल दीज थिंग इज अ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। After that, parietal for the general senses, hot, pressure, cold, touch, for all these things, इसमें somatosensory area होता है। After that, visible area in occipital. आफ्टर दैट टेम्पोरल में क्या होता है? हमारा ऑडिटरी। ब्रोंकस एरिया है, ब्रोकस एरिया है फॉर स्पीच। वर्निकस है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जो भी हम बोल रहे हैं उन चीजों को समझने के लिए। इट वॉज ऑल अबाउट द सेरिब्रम, और यू कैन से दैट इट वॉज ऑल अबाउट द फोर ब्रेन। हमने ऑक्सीपिटल लोब देख लिया, हमने क्या देख लिया? सेरिब्रम देख लिया, और हमने डांस नेफ्रॉन कल देखा था। ओके, नाउ इट इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब देखो बेटा, जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक लिम्बिक सिस्टम है, जो एक्चुअली में लिम्बिक ब्रेन ही बोला जाता है। वो भी यहीं से एराइज होता है हमारे सेरेब्रम से, लेकिन वो अलग से ब्रेन का एक पार्ट माना जाता है। जो इसके अंदर में है उसको मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि वो अलग से हमारे एनसीईआरटी में दिया है। अब हम आ जाएंगे हमारे हाइंड ब्रेन के एक पार्ट में, दैट इज अ सेरिबेलम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आप देखोगे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हियर इट इज अ समवॉट फ्लावर लाइक दिस। ये दो फ्लावर है, इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये बीच में डिवाइड है, ये लाइन जो डिवाइड कर रही है, इस डिवाइड लाइन को हम क्या बोलते हैं?
वर्मिस बोलते हैं। दिस लाइन इज नोन एज वर्मिस। आप जब देखोगे इसके अंदर में भी पूरा किनारे किनारे क्या है कि ऑल दीज साइड हैव द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब मीन्स सेल बॉडी, और इस पूरे ग्रे मैटर के बीच में व्हाइट मैटर समथिंग लाइक दैट ऐसे है। एक व्हाइट मैटर्स क्या बनाते हैं बेटा, व्हाइट मैटर्स विल फॉर्म ट्री इनसाइड दिस। पूरा ग्रे है और ऐसे ऐसे इसके अंदर में व्हाइट मैटर्स ट्री बनाते हैं। टू हार्प्स सेरिबेलम के साइड में क्या है, ग्रे मैटर है, और अंदर में क्या, ये जो ग्रे मैटर के अंदर में व्हाइट मैटर बनते हैं, इससे एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दिस साइड और दिस साइड। दिस ट्री स्ट्रक्चर इज नेम एज ऑर्बिटर वीटी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ए है, दिस इज द ए, थोड़ी सही चल नहीं रही है, वीटी। ठीक है, बस इसका नाम जानना है क्योंकि नाम नीट के एग्जाम में आया है। अब देखोगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है सब कहाँ से होते हैं, सब सेरिब्रम से होते हैं। यहाँ सेरिब्रम के पास पूरा ये ग्रे मैटर है, ठीक है, ये पूरा ग्रे मैटर है, अंदर में ये व्हाइट मैटर है, ठीक है। यहाँ से मैसेज किसको जाता है, यहाँ से मैसेज हमारे मोटर एरिया के पास जाता है यहाँ, और फिर मोटर एरिया यहाँ से मैसेज नीचे भेजता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से पोन्स के रास्ते से जाने की वजह से एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। एग्जॉन्स जो सारे जा रहे हैं उससे ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पॉन्स ब्रिज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर ये आता है कि पॉन्स ब्रिज कैसे फॉर्म होता है, तो पॉन्स ब्रिज आर फॉर्म बाय द एक्सॉन ऑफ द सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। ओके, अब देखो ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस में क्या आते हैं बेटा, पोस्चर्स, जितना भी पोस्चर्स मेंटेन करने का काम होता है। टोन का काम, टोन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी ऑल टाइम स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, हम खड़े भी हैं तो भी स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट है, हम ऐसे सीधे देखना स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये बिल्कुल रिलैक्स होती तो ये ऐसे होती और हम कुछ ऐसे होते, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हर टाइम में थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट रहती है, जिसकी वजह से हम स्टैंड प्रॉपरली खड़े हैं। तो ये फंक्शन किसका होता है, बिकॉज सेरिबेलम गिव मैसेज टू अवर स्केलेटन मसल्स। ये हमारे स्केलेटन मसल को यहाँ से हमेशा मैसेज जाया करता है फॉर द स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए, टू मेंटेन द बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट फॉर द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के लिए, जैसे सपोज समवन इज टचिंग यू, कोई आपको टच करा, इट मैसेज कम्स टू सोमैटोसेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन क्या, मोटर एरिया के पास मैसेज क्या। अब नाउ मोटर एरिया विल रियलाइज दैट हाउ दिस टच, क्या इस टच पे हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये टच गुड है बैड है कैसा है। देन मोटर एरिया विल रिस्पॉन्स। अब मोटर एरिया कैसा है, मोटर एरिया सिर्फ ये मैसेज देता है कि हमें अपने हैंड को घुमाना है। इसको कैसे घुमाना है, किसको हम, अगर हम किसी को बुला रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उसको हाथ रख के बुलाएं, ना कि हम उसको मार के बुलाएं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं, ये मैसेज मोटर एरिया किसको देता है, यहाँ से हमारे सेरिबेलम को, और सेरिबेलम फिर हमारे मसल्स को मैसेज देगा कि आपको यहाँ से इतना हाथ उठा के यहाँ पे इतना रखना है, जिससे उस इंसान को चोट नहीं लगेगी, सिर्फ उसके ऊपर हाथ जाएगा। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं सब सेरिबेलम से होते हैं, पॉन्स, टोन्स, पोस्चर, कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट, बैलेंस, ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं, सेरिबेलम से होती हैं। अब आप क्या देखोगे बेटा, यू विल सी दिस इज द ब्रेन, ये पूरा एरिया ग्रे एरिया, ये पूरा एरिया क्या है बेटा, all these area are the, wait a second, all these area are the gray area, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी है, ठीक है, ये सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ये भी ग्रे एरिया है। उसके बाद आप क्या देखोगे, व्हाइट को मैं येलो से बना रही हूँ, ये सब एक्सॉन गए हैं, ठीक है। इस एक्सॉन के बीच में कहीं कहीं पे आपको फिर से थोड़े थोड़े ग्रे मैटर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में ये ग्रे मैटर क्या होते हैं, दे आर द न्यूक्लियाई। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बीच में जो स्ट्रक्चर होते हैं, सेल बॉडी होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज न्यूक्लियाई। इन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, नेम्ड एज बेसल न्यूक्लियाई। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। एक्चुअली में ये मैं बेसल न्यूक्लियाई क्यों बताई,
our basal nuclei and hypothalamus together control our all the emotions. हमारे जितने भी emotions होते हैं, हमारी desires होती है, इन सारी चीजों को हमारी इसके साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अमाइलेगाटा बोलते हैं, जिसको आपको पढ़ना नहीं है, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी, आई हैव नॉलेज अबाउट दैट, तो मैंने बस बता दिया। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेसल बॉडी एंड हाइपोथैलेमस टुगेदर फॉर्म द लिम्बिक सिस्टम। ये एक साथ मिलकर लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करती है। कौन सी मेमोरी हमारे पास कितना देर रहेगी, जो बैड मेमोरी, गुड मेमोरी, इस चीज के लिए हमें रोना चाहिए, इसके लिए हमें कैसा फील करना चाहिए। नाउ आई एम मिसिंग समवन, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, ये सारी चीजें जितने भी होते हैं, ऑल द इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय द बेसल न्यूक्लिया एंड हाइपोथैलेमस, और इमोशनल ब्रेन को ही हम लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं। दैट इज योर लिम्बिक ब्रेन। Emotional brain is known as limbic brain. ठीक है। Now today your all the topics of brain has been finished, or now we are going to finish this chapter. Only one thing remain, that is a reflex arc. सिर्फ एक चीज बची है, जो क्या है बेटा, रिफ्लेक्स अर्क है। आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, वेट, you can see this figure in your NCERT, this structure, it is showing the reflex actions. Actually, there is a hot plate and my hand is touching this hot plate, and from here sensory neuron is sending message to our brain. ये किसके पास, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जा रहा है। ठीक है। आफ्टर दैट आवर ब्रेन give message to our muscles of hand to pull your hand. All this pathway, ये मैसेज यहाँ से गया, हमारे ब्रेन के पास गया, और हमारे ब्रेन के पास यहाँ तक आया। एक्चुअली में इस पूरे पाथवे को हम रिफ्लेक्स पाथवे कह सकते हैं। अब इस रिफ्लेक्स पाथवे से ब्रेन को हटा दो। हम रिफ्लेक्स पाथवे से ब्रेन को हटा देते हैं। यहाँ से हमने हॉट प्लेट को टच किया, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, यू कैन सी बाय योर लेग, आप लेग के थ्रू देखोगे, यहाँ से आपने, यहाँ से स्टिमुलस आया, कुछ भी स्टिमुलस हम मान लेते हैं, सपोज करिए कोई निडल है, यहाँ से निडल आई, ठीक है। देन फ्रॉम हियर मैसेज इज गोइंग, यहाँ से मैसेज देखिए, मसल्स, यहाँ से मैसेज जा रहा, ठीक है, थ्रू द अफरेंट पाथवे, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज यहाँ से गया। अब मैसेज कहाँ गया बेटा, मैसेज हमारे ग्रे मैटर के पास गया। ग्रे मैटर जान रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मान लेते हैं और ब्रेन को, इन दोनों के बीच में रिले न्यूरॉन्स के थ्रू इंटरलिंक्ड हुआ। हम ब्रेन को हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ ग्रे मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सडन हमने एक्शन लिया और अपना पैर, यहाँ से मैसेज आया बाय द मोटर न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, और ये मैसेज हमारी मसल्स के पास गया, तुरंत मसल्स के थ्रू ये फिगर में लेग से हटा लिया गया, ठीक है। उसी तरह आपने हैंड हटा लिया। तो ऑल दिस एक्शन, जो हमने पैर को, आपके बुक में जो पैर को हटाया गया या हमने अपने हाथ को हटाया, दिस एक्शन दैट वी आर डूइंग अगेंस्ट द हॉट प्लेट, या किसी भी सेंसेस के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा थिंकिंग किए बिना तुरंत करते हैं, हॉट प्लेट को टच किया, तुरंत हाथ हटाया, देयर इज नो लॉट्स ऑफ थिंकिंग के हाथ हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुरंत हाथ हटाते हो। इसी को हम सडन, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एंड होल पाथवे दैट इज ऑब्टेन फॉर द एक्शन, जो हमारी यहाँ स्किन से हमारे सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में मैसेज गया और वापस से मोटर न्यूरॉन में, ये जो पूरा पाथवे है, दैट रूट इज नोन एज रिफ्लेक्स पाथवे। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स पाथवे। और रिफ्लेक्स पाथवे इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स अर्क। इसी रिफ्लेक्स पाथवे को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स अर्क बोलते हैं। अगर हम और डीप पढ़ेंगे तो यू कैन सी दैट ऑल द मैसेजेस दैट इज कमिंग फ्रॉम द योर स्किन,
will send message to your spinal cord, then it will relay into the brain and spinal cord by the relay neuron. After that, motor neuron will give message for the action. ठीक है, तो जो मैसेज हमारे सेंसरी ऑर्गन स्किन से निकल के हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड मोटर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच रिले होता है, और मोटर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, देन आवर स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज टू कि हाथ हटाना है। एक्चुअली जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्व है, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सर and all the sensory organ that present around our head, nose, tongue, eyes, ear, they all have directly connection to our brain. Here no involvement is the spinal cord. यहाँ पे spinal cord का कोई involvement नहीं है. Olfactory lobe में directly यहाँ से bipolar neuron जाते हैं, same as eyes से directly nerve जाती है occipital lobe में, ear से directly nerve जाती है कहाँ पे बेटा? हमारे temporal lobe में, ठीक है। तो जहां पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं इन्वॉल्व होती, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल रिफ्लेक्स आर्क। Now this chapter has been finished. बेटा please go through all the chapters. आप सारे please go through the whole the chapter, revise it and mark your doubt and send me. Then we will start next chapter, and please let me know कि आपने वीडियो फिनिश कर लिया, so I can start new chapter. Thank you for your all support.